Hello everyone, I am Manjeet Singh and today we are going to discuss the reading from Cambridge Book 3 Test 4 Passage 3rd. Let's start with the reading. Let's start with the first question of para 3 and that is 28th. And first of all मैं माफ़ी मांगना चाहना यहाँ टेढ़े प्रिंट लाई आई एम सॉरी एंड चलो आप फिर भी स्टार्ट करिए क्वेश्चन नंबर 28 and the question is the experiment was designed to establish answer है the established whether increased productivity should be sought at any cost ਵੀ ਜਿਹੜਾ establish ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ establish ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ increased productivity ਹੈ ਉਹ sought ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ that is in the first para first line तो start कर लेने ओके लिखा there is a clear cut evidence that है ना evidence है इससे मिले हैं proof मिले हैं for a period of at least 1 year एक साल लाई supervision which increases the direct pressure जो supervision है direct pressure create कर रहे हैं ठीक है productivity can achieve significant increases in production of course you know बड़े ही ज़्यादा मतलब increase कर सकते हैं उधर production बढ़ा सकते हैं however a short term increase होगा are obtained only at a substantial and serious cost to the organization ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ obtain ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀਰੀਅਸ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੇ ਬੀ ਕੁਝ ਕਹਾ ਨਾ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਐਂਡ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੈਮਰਾਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਐਂਡ ਜੇ ਹਿਊਮਨ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਓਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 28 ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੋ ਦੈਟ 4 ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਕੁਡ ਯੂਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸੇਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ and C perfect the system for processing account ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਯੂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ D exploit the human organization of a company in order to increase profits ਦੇਖੋ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ ਬਟ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ठीक है भी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੌਰੀ ਜੋ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬਟ ਪੈਸੇਜ 'ਚ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ ਓਕੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 29 ਓਕੇ ਦ 4 ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਹੁਣ 4 ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਲਿਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਦ ਸੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਹੈਡ ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ ਪੈਟਰਨਸ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ ਪੈਟਰਨਸ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਬਿਕਾਜ਼ ਥਰਡ ਪੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦ ਸਟੱਡੀ ਕਵਰਡ 500 ਕਲੈਰੀਕਲ EMPLOYEES ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਕਲੈਰੀਕਲ EMPLOYEES ਨੇ 4 ਪੈਰਲਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਹਰੇਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਵੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਸੇਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਹੈਡ EMPLOYEES ਆਫ ਦਾ ਕੰਪੇਰੇਬਲ ਐਪਟੀਟਿਊਡਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਤੱਕ ਸੇਮ ਹੈ ਓਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੈਡ ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ ਪੈਟਰਨਸ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਓਕੇ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 30 sorry before the experiment answer C okay the staff involved spent a number of months preparing for the study ਵੀ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਲਗਾਇਆ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਟ ਸਿੰਪਲੀ ਮੀਨਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 2nd 3rd 4th 5th 6th ਪੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है लिखा द एक्सपेरिमेंट फर्स्ट लाइन द एक्सपेरिमेंट एट द क्लैरिकल लेवल लास्टेड फॉर 1 ईयर एंड बिफोर हैंड उस तो पहला उन्होंने की मिला several months were devoted to planning उन्होंने प्लानिंग दी एंड देयर वाज आल्सो अ ट्रेनिंग पीरियड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 6 months ਲਈ उन्होंने पूरी ट्रेनिंग मिली है ठीक है उस चीज़ ਲਈ okay let's move on to the next question and that is the 31st okay मैं पूरा पढ़ लेने ये देखो फिलिप्स आ गए है जोड़ा कि 1 word आंसर है एंड वी शुड बी केयरफुल अबाउट दैट भी ये आप करते हैं 1 word भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं ठीक है जो भी किसी वर्ड के हाइफन आ जाता है तो 1 word ही कंसीडर होता है चाहे वो वर्ड 2 हो ओके स्टार्ट करते हैं आप ओके दिस एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्वड एन ऑर्गेनाइजेशन
कि कंप्राइजिंग 4 डिविजन्स ऑर्गेनाइजेशन है जिहदे कंप्राइज की 4 डिविजन्स आते हैं विच वर डिवाइडेड इंटू 2 प्रोग्राम्स। 2 प्रोग्राम्स ने, एक तो जिहड़ा हिरारकीकली कंट्रोल्ड प्रोग्राम जो कि एक खास बंदा उपर बैठे होंगे ऑर्गेनाइजेशन ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ EMPLOYEES ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਿਊਜ਼ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਬੰਨੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਿਊਜ਼ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर अ डिफरेंट मैथड्स ऑफ सुपरविजन वॉज यूज इन ईच प्रोग्राम। ठीक है, दोनों प्रोग्राम विच चाहे वो हिरारकीकली कंट्रोल्ड है चाहे पार्टिसिपेटिव है, दोनों विच ही ठीक है भी कुछ ना कुछ डिफरेंट मैथड्स यूज़ कर रहे हैं किस चीज़ है सुपरविजन से हो ही रहा, सुपरविजन ही हो रहा है, वॉज यूज इन ईच प्रोग्राम। एंड ये जो थोड़ा गिवन हैगा ठीक है 31st ये है फस्ट पेज का लास्ट पैरा। ठीक है, लास्ट पैरा की फस्ट लाइन तो पढ़ते हैं आप जिथे लिखा है टर्निंग नाउ टू द हार्ट ऑफ द स्टडी इन 2 डिविजन्स। जो 2 डिविजन्स जिते आप गल करके हटे हिरारकीकली कंट्रोल्ड एंड द नेक्स्ट वन इज पार्टिसिपेटिव। एंड अटैम्प्ट वॉज मेड टू चेंज द सुपरविजन की गल हो रही है चेंज कर सकना सुपरविजन सो दैट द डिसीजन लैवल्स वर पुश्ड डाउन एंड डिटेल्ड सुपरविजन ऑफ द वर्कर रिड्यूस्ड। भी जो सुपरविजन है ठीक है वो रिड्यूस किया जाए, डिटेल जो भी वो कर रहे हैं प्रोग्राम के यूज़ कर रहे हैं। इट सिंपली मीनस दैट ना भी जो मेन प्रोग्राम है वो की है वो सुपरविजन है जो कि सुपरविजन इतने कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अटैम्प्ट मेड किए सुपरविजन को चेंज करने लई। ठीक है, आ सुपरविजन आंसर है इतों। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 32 वॉज यूज इन द ईच प्रोग्राम एंड थ्रू आउट दिस टाइम ठीक है प्रोडक्टिविटी वॉज कैलकुलेटेड ऑन अ वीकली बेसिस। ऑफ कोर्स सुनो प्रोडक्टिविटी को की कर रहे थे वो चैक कर रहे थे वीकली बेसिस उत्ते। एंड ये भी थोड़ा गिवन हैगा सैकेंड लास्ट पैरा फस्ट पेज। ठीक है, आप पूरा ही पढ़ लेने जिस लिखा है दस एक्सपैरीमेंट एट द क्लैरिकल लैवल लास्टेड फॉर 1 ईयर, एक साल ही चलिया। बिफोर हैंड उन्होंने किया गया ठीक है कुछ मंथ्स लगाए गए डिवोटेड ताकि प्लान कर सकन। उस तो बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना भी अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स लई। और उसका प्रोडक्टिविटी जो चीज़ चेक कर रहे थे किस चेक कर रहे थे प्रोडक्टिविटी वॉज मेजर्ड कॉन्टीन्यूसली, लगातार मेजर की गई एंड कंप्यूटेड वीकली थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, वीकली बेसिस होते एक साल लई प्रोडक्टिविटी चेक कर रहे थे रिकॉर्ड कर रहे थे ये है। ओके, ताही करके आंसर प्रोडक्टिविटी है। लेट्स मूव ऑन टू द नाउ द कैटेगराइज। ठीक है, कैटेगराइज करता है इन्होंने एक पार्टिसिपेटिव प्रोग्राम एंड दूजा हिरारकीकली कंट्रोल्ड प्रोग्राम। आप उन्होंने बारे गल करांगे। हुण पार्टिसिपेटिव प्रोग्राम दे विच की सीगा सुपरविजन्स ऑफ ऑल वर्कर ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸੁਪਰविजन ਉਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਿੰਨ ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹਦੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 33rd। ओके, 33rd इज गिवन इन दिस पैरा। ठीक है, जिहदे विच लिखा गया है सुपरविजन ऑफ द आप स्टार्ट करिए लास्ट पैरा। ठीक है, टर्निंग नाउ टू द हार्ट ऑफ द स्टडी इन 2 डिविजन्स अटैम्प्ट किए गए थे मेड किए गए थे ताकि सुपरविजन्स को चेक कर सकन चेंज कर सकन सो दैट द डिसीजन लैवल्स वर पुश्ड डाउन एंड डिटेल्ड सुपरविजन ऑफ द वर्कर्स रिड्यूस। जो सुपरविजन है उन्होंने रिड्यूस किया जाना चाहिए। ठीक है, कर रहे हैं वो किस कर रहे थे वो अपने पार्टिसिपेटिव प्रोग्राम के कर रहे थे। ठीक है, इस करके आंसर की है आंसर थोड़ा ठीक है रिड्यूस्ड कट किया गया वो आंसर है। ठीक है, इतने यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं है। ओके, द नेक्स्ट वन इज सुपरवाइजरी स्टाफ वर गिवन ट्रेनिंग। किस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई सी इन लीडरशिप। ठीक है, इन्होंने ट्रेनिंग दी गई सी स्पैशल ट्रेनिंग मिली सी। ओके, एंड ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਸਟ 2 ਲਾਈਨਸ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਇਨ ਫਸਟ ਪੇਜ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦ ਮੈਨੇਜਰਸ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰਸ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਸ ਐਂਡ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਸ ਆਫ ਥੀਸ 2 डिविजन्स ठीक है वर ट्रेंड, उन्होंने ट्रेनिंग मिली सी इन ग्रुप मैथड्स ऑफ लीडरशिप। तो ग्रुप मैथड्स ऑफ लीडरशिप भी आंसर हो सकता है बट सॉरी ओके, तो ये आंसर की है हिरारकीकली कंट्रोल प्रोग्राम सॉरी सुपरवाइजरी स्टाफ वर गिवन ट्रेनिंग इन लीडरशिप। इन्होंने लीडरशिप ट्रेनिंग मिली सी। तो ठीक है, तो ये आप 1 वर्ड सीगा सॉरी इस करके आप आंसर पूरा नहीं लगा सकते, अदरवाइज ये पूरा आंसर होता ग्रुप मैथड्स ऑफ लीडरशिप आंसर करना होगा लीडरशिप।
Okay, and the next question is, in the hierarchically controlled program, supervisions of all workers was increased, है ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, increase ਕੀਤਾ supervision, ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, and work groups were found to be overstaffed by 30%। ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ work group ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ overstaffed ਹੈ, ਕਿੰਨਾ overstaffed ਹੈ, at least by 30%, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਤੇ, ਸੈਕੰਡ ਪੇਜ, ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਪੇਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਸੈਕੰਡ ਪੈਰੇ ਦੀ ਲਾਸਟ 4 ਲਾਈਨਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦਿਸ ਸ਼ੋਡ ਦੈਟ, ਪੂਰਾ ਪੈਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹਿਰਾਰਕੀਕਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ 4 ਲਾਈਨਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦਿਸ ਸ਼ੋਡ ਦੈਟ these divisions were overstaffed कितना by 30%, ठीक है, तो आंसर की है overstaffed। and let's move on to the question number 36th, and ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ the workforce was reduced, cut or decreased by 25%। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ overstaffed 30%, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ workforce ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, by 25%। ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸੇਮ ਪੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਸਟ 3 ਲਾਈਨਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਪੈਰਾ ਸੈਕੰਡ ਪੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੈਨ ਆਰਡਰ ਦ ਮੈਨੇਜਰਸ ਆਫ ਥੀਸ 2 ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਟੂ ਕੱਟ ਸਟਾਫ ਬਾਈ 25%। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 25% ਤੱਕ ਘਟਾਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਓਕੇ, ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦ 37 ਕੁਐਸਚਨ, ਐਂਡ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਗਰਸ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ, ठीक है, अपन फिगर्स से बेस्ड है, तो अपन फिगर्स पढ़ के देखना पड़ेगा। फिगर 1 है, फिगर 1 का आंसर की है सी, चेंजेस इन प्रोडक्टिविटी। ओके, सी की दस रहा चेंजेस इन प्रोडक्टिविटी, एंड तुसी आप नोट कर सकते हो प्रोडक्टिविटी चेंज हुई है, देखो पार्टिसिपेटिव एंड हिरारकीकली कंट्रोल दोनों विच हुई है, ठीक है, तो पढ़ के देखो, देखो पार्टिसिपेटिव जो है डायग्राम जो दिख रहा है, प्रोडक्टिविटी चेंज हुई है, बिफोर की सी और आफ्टर की है, बिफोर पहला की सी और आफ्टर की है, प्रोडक्टिविटी की हुई है, चेंज हुई है। एंड ये थोड़ा गिवन है, ठीक है, चेंजेस इन प्रोडक्टिविटी जो रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो लिखा उस फर्स्ट लाइन से लिखा, फिगर 1 शोज दैट द चेंजेस इन सैलरी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ वर्क विच रिफ्लैक्ट्स द चेंज इन प्रोडक्टिविटी दैट अकर्ड इन द डिवीजन। जो प्रोडक्टिविटी है वो चेंज आया, एंड तुम आप देख भी सकते हो वो रिड्यूस हुई है, ठीक है, दोनों विच ही। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38th, जिसका डी आंसर है, लिखा एम्प्लॉइज फीलिंग्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंप्लीशन ऑफ वर्क। एम्प्लॉइज की फीलिंग्स बारे दस्या डायग्राम के भी आपके वर्क बननी की है, फीलिंग्स ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੌਰੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਵਰਕ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਟ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਹਿਰਾਰਕੀਕਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਵਨ ਹੈ रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट विच, ठीक है, चेंजेस इन एटीट्यूड जोड़ा कि सैकंड पेज उत्ते लास्ट पैरा है। फॉर एग्जाम्पल फिगर 2 शोज दैट कि शो कर रहे हैं वैन मोर जनरल सुपरविजन एंड इंक्रीज पार्टिसिपेशन वर प्रोवाइडेड एम्प्लॉइज फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, वो एम्प्लॉय फील करता वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए, वो की है, वो अगर तुम डायग्राम देख के मतलब थोड़ा पता लग ही चुके हैं वो की देख रहे हैं। देखो पार्टिसिपेटिव वो ज़्यादा फील कर रहे हैं क्लोज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के, तो दूजे हिरारकीकली कंट्रोल नहीं, ठीक है, उस तो उल्टा जा रहा है। एंड 39th का आंसर है जी, एम्प्लॉइज फील क्लोजर टू द सुपरवाइजर, ठीक है, हम एम्प्लॉइज की कर रहे हैं क्लोजर फील कर रहे हैं सुपरवाइजर के किहड़े विच डायग्राम विच, एंड दैट इज़ इन द पार्टिसिपेटिव विच, ठीक है, ज़्यादा क्लोजर फील कर रहे हैं, जो लिखा बिफोर एंड आफ्टर। एंड हिरारकीकली कंट्रोल विच नहीं क्लोज कर रहे हैं ना, फील नहीं कर रहे हैं। एंड इहदा आंसर नैक्सट पेज से है, ठीक है, थर्ड पेज द फर्स्ट पैरा जिथे लिखा एज फिगर 3 शोज द एम्प्लॉइज इन द पार्टिसिपेटिव प्रोग्राम एट द एंड ऑफ द ईयर फेल्ट दैट की फेल्ट कर रहे हैं द मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर वर क्लोजर टू दम, जो मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर है क्लोजर ने उन्होंने तो दैन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो साल के शुरू से बिकॉज उदों सुपरविजन ज़्यादा चल रही थी इन्होंने उत्ते, ठीक है, इस करके क्लोज फील कर रहे हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 40th दैट इज़ द लास्ट वन, फिगर 4 जोड़ा कि आंसर एफ है, एम्प्लॉइज ओपीनियन एज टू एक्सटेंट ऑफ पर्सनल सपोर्ट फ्रॉम मैनेजमेंट, भी वह ओपीनियन, ठीक है, स्टूडेंट की ओपीनियन है पर्सनल सपोर्ट जो मैनेजमेंट तो है, उस बारे तुम डायग्राम देख सकते हो। पहला डायग्राम की है पार्टिसिपेटिव जो ओपीनियन अच्छा है,
तो हिरार्कीकली कंट्रोल्ड विच ना ठीक ठाक है, मतलब घट है अगे ना ओपीनियन, कुछ खास अच्छा नहीं है। एंड ये थोड़ा गिवन है थर्ड पेज के उत्ते, थर्ड पेज से थर्ड पैरा, सॉरी थर्ड पैरा नहीं, थर्ड लाइन फर्स्ट पैरा जी। मोर ओवर एज फिगर 4 शोज द एम्प्लॉयज इन द पार्टिसिपेटिव प्रोग्राम फेल्ट दैट, की फेल्ट कर रहे हैं दैट देयर सुपरवाइजर्स वर मोर लाइकली टू पुल फॉर देम, सुपरवाइजर ज़्यादा उन्होंने हेल्प कर रहे हैं बिकॉज वो पार्टिसिपेटिव विच उन्होंने हेल्प कर रहे हैं पार्टिसिपेट करने से, और फॉर द कंपनी एंड देम, कंपनी तो दोनों लिए काम कर रहे हैं, एंड नॉट टू बी सोली इंटरस्टेड इन द कंपनी, वो कल्ले कंपनी विच भी इंटरस्टेड नहीं है, उन्होंने विच भी इंटरस्टेड नहीं है, ठीक है। एंड दैट्स ऑल। आई होप थोड़ा रीडिंग समझ आई होगी, ठीक है। ऑल पीरियड 40th क्वेश्चन तक। एंड जो थोड़ा चंगा लगे, डिस्कशन चंगी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है, एंड कमेंट ज़रूर करो। थैंक यू।